Okay, students, welcome to again my channel Sudhir Biology. You can see today we start to development of megasporangium. The female gametophyte, that is, uh, you can see pistil. Pistil contain three parts: ovary, style, stigma, and within these, the megasporangium development takes place. The gynoecium present in female reproductive part, as you know, and the female reproductive part contain three parts: stigma, style, ovary. If pistil, it is also overall called as pistil. If pistils single in the flower, then such type of pistil is called as monocarpellary. In other words, flower is called as monocarpellary. If the more than one pistils are present, then it is called as multicarpellary. Right? When the fusion of all these multicarpellary carpels, then it is called as syncarpus. If all these pistils are free from each other, then it is called as apocarpes. So you understand syncarpus and apocarpus. And within the ovary, there are placenta are present. The point where the placenta attached on the ovary, within the ovary, ovule are present, and these ovules are attached with the placenta inside the ovary. Ovule are also called as megasporangium. Within the ovary, there are either one or more than one ovule are present. In other words, either one or more than one megasporangia are present in the ovary. Here you can see this is a flower, ovary. Within the ovary, there is a ovule. There is a simple method for the formation of ovule. First, you draw the question mark structure, and then you modify this structure like this, and this is the ovule. Here it is prepared ovule. Within the ovule, this is the embryo sac. This is called as embryo sac, right? Within the ovary, ovule is present. Within the ovule, embryo sac is present. Now, megasporogenesis. Megasporogenesis, the development of megaspore from megaspore mother cell. Development of megaspore from megaspore mother cell is called as megasporogenesis. Now, what is megaspore mother cell? You see, this is the embryo sac. Within the embryo sac, number of cells are present. There are many cells, and these cells are called as nucleus cells. Nucleus cells. Normally, out of these cells, only one nucleus cell is modified and increased in size, having prominent nucleus and cytoplasm. This is called as MM cell. This MM cell having sufficient cytoplasm, prominent nucleus. Now after that, this MM cell undergo meiosis. Undergo meiosis. In this MM cell, there is a meiosis division takes place. Meiosis. After meiosis, first nucleus is divided into two parts, then nucleus divided into four. Ultimately, it have four cells. Out of four, one is functional and remaining three are degenerate. You can see here, this is the complete developed meiosis. After meiosis, four cells are produced, but out of four, three are degenerate. These three are degenerate. One is functional. This is the functional cell. If one is functional,
And in this functional, further mitotic division takes place. After the mitotic division, there is 2 nucleus is divided, then again mitotic division, there are 4 nucleus is divide, again one more mitotic division, means 4 cells in each poles are present, and then from each pole one cell is migrate towards center, and remaining 3 cells are present in each poles. And after that, polar region nucleus is divided followed by cytokinesis. That means all nucleus surrounded by cell wall. Right? So this is the complete structure, how it is developed. Here you can see there is 4 cells, out of 4 3 degenerate. Now mitosis takes place, 1 2 3 mitosis takes place, resulting this structure is present, and ultimately this is called as egg apparatus, and these portions is called as antipodal cell, and this is called as polar nuclei. In the female gametophyte, as I told you, megaspore developed into female gametophyte. That is, after development, complete development, this is egg cell, 2 is synergid cell, within the center polar nuclei, here is antipodal cell. Now this is the female gamete. This is called as female gamete. Egg cell is called as female gamete. So overall development is called as development of gametophyte. Female gamete is known as egg cell, and it is present in embryo sac. This is the embryo sac. Development of embryo sac from single cell is called as monosporic development. If out of 4 2 are degenerate and 2 cells are functional, then such type of development of embryo sac is called as bisporic. If out of 4 3 are functional, then it is called as trisporic development. In rare case, all 4 cells are functional, then it is called as tetrasporic development. But mostly in angiosperm, only one cell is functional. That's why this is called as monosporic development. Right? And in this scenario, okay students, welcome to again my channel Sudhir Biology. You can see today we start to development of megasporangium, the female gametophyte, that is you can see pistil. Pistil contain 3 parts: ovary, style, stigma, and within these the megasporangium development takes place. The gynoecium present in female reproductive part, as you know, and the female reproductive part contain 3 parts: stigma, style, ovary. If pistil, it is also overall called as pistil. If pistil single in the flower, then such type of pistil is called as monocarpellary. In other words, flower is called as monocarpellary. If the more than one pistils are present, then it is called as multicarpellary. Right? When the fusion of all these multicarpellary carpels, then it is called as syncarpus. If all these pistils are free from each other, then it is called as apocarpes. So you understand syncarpus and apocarpus. And within the ovary there are placenta are present. The point where the placenta attached on the ovary, within the ovary, ovule are present, and these ovules are attached with the placenta inside the ovary. Ovule are also called as megasporangium.
within the ovary there are either one or more than one ovule are present. In other words, either one or more than one megasporangia are present in the ovary. Here you can see this is a flower, ovary, within the ovary there is a ovule. There is a simple method for the formation of ovule. First you draw the question mark structure and then you modify this structure like this, and this is the ovule. Here it is prepared ovule. Within the ovule this is the embryo sac. This is called as embryo sac, right? Within the ovary, ovule is present. Within the ovule, embryo sac is present. Now, megasporogenesis. Megasporogenesis, the development of megaspore from megaspore mother cell. Development of megaspore from megaspore mother cell is called as megasporogenesis. Now, what is megaspore mother cell? You see, this is the embryo sac. Within the embryo sac, number of cells are present. There are many cells, and these cells are called as nucleus cells. Nucleus cells. Normally, out of these cells, only one nucleus cell is modified and increased in size, having prominent nucleus and cytoplasm. This is called as MM cell. This MM cell having sufficient cytoplasm, prominent nucleus. Now after that, this MM cell undergo meiosis. Undergo meiosis. In this MM cell, there is a meiosis division takes place. Meiosis. After meiosis, first nucleus is divided into two parts, then nucleus divided into four. Ultimately, it have four cells. Out of four, one is functional and remaining three are degenerate. You can see here, this is the complete developed meiosis. After meiosis, four cells are produced, but out of four, three are degenerate. These three are degenerate. One is functional. This is the functional cell. If one is functional, and in this functional, further mitotic division takes place. After the mitotic division, there is a two nucleus is divided. Then again mitotic division, there are four nucleus is divided. Again one more mitotic division, means four cells in each poles are present, and then from each pole one cell is migrate towards center, and remaining three cells are present in each poles. And after that, polar region nucleus is divided, followed by cytokinesis. That means all nucleus surrounded by cell wall, right? So this is the complete structure, how it is developed. Here you can see there is four cells. Out of four, three degenerate. Now mitosis takes place. 1, 2, 3 mitosis takes place, resulting this structure is present, and ultimately this is called as egg apparatus, and these portions is called as antipodal cell, and this is called as polar nuclei. Polar nuclei. In the female gametophyte, as I told you, megaspore developed into female gametophyte. That is, after development, complete development, this is egg cell, 2 is synergid cell,
within the center polar nuclei. Here is antipodal cell. Now this is the female gamete. This is called as female gamete. Egg cell is called as female gamete. So overall development is called as development of gametophyte. Female gamete is known as egg cell, and it is present in embryo sac. This is the embryo sac. Development of embryo sac from single cell is called as monosporic development. If out of 4, 2 are degenerate and 2 cells are functional, then such type of development of embryo sac is called as bisporic. If out of 4, 3 are functional, then it is called as trisporic development. In rare case, all 4 cells are functional, then it is called as tetrasporic development. But mostly in angiosperm, only 1 cell is functional. That's why this is called as monosporic development, right? And in this scenario, वाच्य क्रिया का वह रूप होता है जिससे हमें यह पता चलता है कि क्रिया कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार। इस आधार पर आप सामने देख रहे हैं कि वाच्य 3 प्रकार का होता है। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। वाच्य के बारे में बताते हैं। कर्तृ, जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर कर्ता प्रमुख होता है और इसकी विशेषताएं लिखी है कि क्रिया यहाँ पर कर्तृवाच्य में क्रिया का लिंग वचन कर्ता के अनुसार होता है। मतलब ये कि अगर कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग होगी, और अगर कर्ता बहुवचन है तो भी क्रिया बहुवचन होगी। कर्ता प्रधान रहता है। क्रिया इसमें सकर्मक या अकर्मक कोई भी हो सकती है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं। पहला वाक्य लेते हैं, लड़का पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं लड़का एक वचन है और यहाँ पर क्रिया भी एक वचन है। लड़का पुल्लिंग है और क्रिया भी इसकी पुल्लिंग है। दूसरा वाक्य हम लेते हैं, लड़कियां गाती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लड़कियां स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, तो आप इसकी क्रिया भी देखते हैं, क्रिया भी आपकी यहाँ पर स्त्रीलिंग और बहुवचन है। अब दूसरा वाच्य आता है कर्मवाच्य। अब जैसे इसके नाम से भी स्पष्ट होता है कि इस वाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। मतलब यहाँ पर क्रिया कर्म के लिंग और वचन के अनुसार ही निर्धारित होती है कि अगर क्रिया का कर्म का वचन अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी, अगर वो स्त्रीलिंग है तो वो भी स्त्रीलिंग होगी, जैसे कि अभी आपने उसमें भी देखा। तो यहाँ पर कर्ता स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, इससे क्रिया के लिंग या वचन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसकी अन्य विशेषताएं हम देखते हैं। यहाँ पर कर्म प्रधान होता है, क्रिया का लिंग वचन कर्म के अनुसार है, ये मैंने अभी आपको ये बताया। यहाँ पर क्रिया हमेशा सकर्मक होती है। जैसे आपने अभी पहले वाले वाच्य कर्तृवाच्य में देखा कि वहां पर सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक ही होती है। इसके साथ यहाँ पर कर्ता के बाद में करण कारक का चिन्ह से या फिर के द्वारा का भी प्रयोग किया जाता है। ये इसकी पहचान होता है, से या के द्वारा। अब इसमें इसकी पहचान के लिए एक हम दूसरा देखते हैं। इसमें हम क्रिया से पूर्व क्या या किसको प्रश्न करते हैं, यदि उसका उत्तर में प्राप्त हो जाता है तो इसका मतलब वो वहां पर कर्म उस वाक्य में है और वो कर्मवाच्य होगा। अब हम उदाहरण से देखते हैं। जैसे लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है। अब आप पहले वाक्य में देखें, यहाँ पर लड़के हैं, एक वचन है। दूसरा, लेकिन आप क्रिया यहाँ देख रहे हैं कि क्रिया लड़का तो पुल्लिंग है, लेकिन उसकी क्रिया हम यहाँ पर स्त्रीलिंग है, पढ़ी जाती है। क्रिया स्त्रीलिंग है जबकि उसका कर्ता जो है वो पुल्लिंग है। तो यहाँ पर क्रिया जो है वो पुस्तक के आधार पर है। तो जैसे
पुस्तक यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए उसकी क्रिया भी स्त्रीलिंग है। अब यहाँ पर से कर्ण कारक भी लगा हुआ है। अब जो हमने आपको आखिरी पहचान इसकी बताई थी कि हम क्रिया से पहले क्या या किसको प्रश्न करते हैं, यदि हमें उसका उत्तर मिलता है तो वो कर्मवाच्य होगा। तो इस वाक्य के अनुसार हम प्रश्न करते हैं, लड़के से क्या पढ़ी जाती है। तो उत्तर आपको इस वाक्य के आधार पर मिलता है, लड़के से पुस्तक पढ़ी जाती है। तो इसका मतलब ये आपका हुआ कर्मवाच्य। इसी प्रकार हम दूसरा वाक्य देखते हैं, सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अब आप इसमें देख रहे हैं कि कर्ण कारक का चिन्ह यहाँ पर के द्वारा का प्रयोग किया गया है। अब इसके साथ आप ये भी देखते हैं कि यहाँ पर कर्ता सीता यानी कि स्त्रीलिंग है, लेकिन उसकी क्रिया कैसी है, पुल्लिंग है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्रिया कर्ता के अनुसार नहीं है, यहाँ पर क्रिया किसके अनुसार है, पत्र यानी कि कर्म के अनुसार। तो पत्र क्या है, पुल्लिंग है, इसीलिए इस वाक्य की क्रिया भी पत्र यानी कि कर्म के अनुसार लिखा जाता है, यह भी पुल्लिंग है। अब इसमें इसका भी हम फिर से उसी तरह से प्रश्न करते हैं कि सीता के द्वारा क्या लिखा जाता है। हमें उत्तर मिलता है सीता के द्वारा पत्र लिखा जाता है। अगर हम इसको ऐसे ही कर दे, सीता के द्वारा, यहाँ से हम पत्र हटा देते हैं, ये वाक्य हम सिर्फ ऐसे रखें, सीता के द्वारा लिखा जाता है, तो उस वाक्य में अगर हम ये उत्तर पूछते हैं, प्रश्न करें कि सीता के द्वारा क्या लिखा जाता है, हमें उत्तर उसमें नहीं मिलेगा, तो वो हमारा कर्मवाच्य नहीं होगा। अंतिम वाक्य में एक और देखते हैं, बच्चे से फल खाए जाते हैं। अब यहाँ पर बच्चे एक वचन है, लेकिन उसकी क्रिया आप देख रहे हैं कि खाए जाते हैं, ये बहुवचन है। ये एक वचन पुल्लिंग है, लेकिन इसकी क्रिया बहुवचन है। तो यहाँ पर बच्चे के अनुसार यानी कि कर्ता के अनुसार क्रिया नहीं, बल्कि किसके अनुसार है, फल यानी कि कर्म के अनुसार है। तो इस प्रकार ये हमारे कर्मवाच्य हैं। कर्मवाच्य में वहाँ की क्रिया हमेशा सकर्मक होती है और उसमें से या के द्वारा कर्ण कारक का प्रयोग किया जाता है। कर्म के अनुसार ही उसकी लिंग क्रिया की लिंग वचन निर्धारित होते हैं। अब हम तीसरे वाच्य की बात करते हैं, भाववाच्य। भाववाच्य और कर्मवाच्य में काफी मिलता जुलता है। जैसे भाववाच्य कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है, उसी तरह से भाववाच्य में भाव प्रधान होता है। लेकिन कर्मवाच्य में जहाँ पर सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, यहाँ पर सिर्फ अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर भाव के अनुसार ही क्रिया का लिंग और वचन निर्धारित होता है। इसकी एक पहचान और ये भी है कि इसमें हमेशा क्रिया एक वचन और पुल्लिंग ही होती है। जैसे हम कर्मवाच्य में से या के द्वारा का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से भाववाच्य में भी हम कर्ण कारक का से और के द्वारा का प्रयोग करते हैं। अब इसको कुछ उदाहरण से समझते हैं। लड़के से पढ़ा जाता है, यहाँ पर से कर्ण कारक आया है, तो लड़के से पढ़ा जाता है। यहाँ पर अगर हम प्रश्न, यहाँ जैसे हमने कर्मवाच्य में हमने प्रश्न किया था कि लड़के से क्या पढ़ा जाता है, तो उसी तरह से हमने यहाँ पर भी प्रश्न किया लड़के से क्या पढ़ा जाता है, तो यहाँ पर आपको कोई भी उत्तर नहीं मिलता है। तो इसका मतलब है यहाँ की क्रिया जो है वो सकर्मक नहीं बल्कि अकर्मक है। साथ में आप ये भी देख रहे हैं कि क्रिया इसकी एक वचन भी है और पुल्लिंग भी है। इसका अगला वाक्य देखते हैं, लड़कियों के द्वारा गाया जाता है। अब जैसे पहले वाक्य में आप ये कह सकते हैं कि वहां पर लड़का पुल्लिंग है, इसलिए उसकी क्रिया भी पुल्लिंग है। तो इसके लिए हमने दूसरा वाक्य लिया, लड़कियों के द्वारा गाया जाता है। यहाँ पर लड़कियों, ये तो स्त्रीलिंग है और इसके साथ साथ वो बहुवचन भी है, लेकिन फिर भी इस वाक्य की क्रिया क्या है, गाया जाता है, ये पुल्लिंग है और साथ में एक वचन भी है। यहाँ पर के द्वारा कर्ण कारक का प्रयोग किया गया है साथ में। अब इसमें भी हम अगर उसी तरह से प्रश्न करते हैं, लड़कियों के द्वारा क्या गाया जाता है, तो इसमें हमारे पास कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो ये भी भाववाची होगा। इसके बाद हम एक और वाक्य लेते हैं उदाहरण के लिए, बच्चों से खेला जाता है। अब
बच्चों से यहाँ पर से कर्ण कारक का चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर बच्चों जो है वो बहुवचन है और पुल्लिंग है, लेकिन इसके बाद भी इसकी क्रिया क्या है, वो एक वचन ही यहाँ पर है। अब इसी अंतिम वाक्य में हम अगर बच्चों से फुटबॉल खेली जाती है, अगर हम यहाँ पर फुटबॉल जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे ही हमने यहाँ पर बच्चों से फुटबॉल खेली जाती है तो जो पहले वाला था वाक्य बच्चों से खेला जाता है, तो वहां पर खेला जाता जो एक वचन और पुल्लिंग क्रिया थी वो यहाँ पर फुटबॉल के जुड़ते ही यानी कि कर्म के जुड़ते ही वो क्रिया जो अभी तक पुल्लिंग थी वो फुटबॉल की क्रिया के अनुसार लिंग के अनुसार वो बदल जाती है। तो वाक्य हमारा क्या बन जाएगा, बच्चों से फुटबॉल खेली जाती है। तो फुटबॉल के अनुसार फुटबॉल स्त्रीलिंग है, इसलिए उसकी क्रिया भी स्त्रीलिंग हो जाती है। Good morning, student. We were reading fishermen in the boat in chapter The Fish Tale. Now this topic is over. अब हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। फिलहाल हम ये रिवीजन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं अब तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है। सबसे पहले हमने टॉपिक की शुरुआत की, पहले तो चैप्टर द फिश टेल फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत की, उसमें हमने पहले टॉपिक पढ़ा द फिशरमैन इन द बोट्स। उसमें हमने पढ़ा टाइप ऑफ बोट्स कितने टाइप के होते हैं, लॉग बोट, फिशरमैन को क्या क्या दिक्कत होती है, वो कैसे अपने डायरेक्शन को फाइंड करते हैं, वो कितने दूर तक जा सकते हैं, किस बोट की स्पीड कितनी होती है। फिर उसके बाद हमने कुछ प्रैक्टिस किए। प्रैक्टिस में हमने यूनिटरी सिस्टम का थोड़ा सिंपल क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया जो कि वर्बल प्रैक्टिस किया। उसके बाद से हमने दूसरे क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया, दूसरा क्वेश्चन भी हमने वर्बल प्रैक्टिस किया। फिर एक वीडियो डाला गया आपके लिए यूनिटरी मेथड के लिए जिसमें आपने देखा उसको, सारी स्टेप को हमने समझा उसमें कि सबसे पहले हमें क्वेश्चन को रीड करना है, रीड करने के बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, फिर वन के लिए फाइंड करना है। जब वन का पता रहेगा तभी हम दूसरे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम को। जैसे कि अगर 10 पेन की प्राइस 90 रुपीज़ है, 100 पेन की प्राइस बताइए, तो हम 100 पेन की सबसे पहले क्वेश्चन में देखो पूछा क्या गया, 100 पेन की प्राइस पूछी गई है। 100 पेन की प्राइस हम तभी बता पाएंगे बेटा जब हमें 1 पेन की प्राइस मालूम हो। तो सबसे पहले हमें 1 का मालूम करना होता है। पिछले क्लास में हमने देखा है कई लोगों का होमवर्क भी आया, उसमें कई लोगों के क्वेश्चन रॉन्ग भी हैं, कई बाकी लोगों ने बहुत अच्छा किया है। सबको वेरी गुड, सब ने कोशिश किया है, जिसके गलत है उन्होंने भी कोशिश किया है, पर अब हमें धीरे धीरे सही होना है और अपने आप को अच्छा करना है समय के साथ। तो फिर से एक बार उस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा जो कि यूनिटरी मेथड के लिए वीडियो है, जो कि व्हाइट बोर्ड पे एक वीडियो डाला गया है यूनिटरी मेथड यूट्यूब पे, उसको आप जरूर देख लीजिएगा। अब हम उसमें बेसिक यूनिटरी मेथड पढ़ाया गया है, उसमें ये बताया गया है 1 दिया है तो ज़्यादा का कैसे फाइंड करना है, और दूसरा उसके आधे पार्ट में ये भी बताया गया है कि ज़्यादा दिया है, जैसे 4 या 5 थिंग्स ऑब्जेक्ट की प्राइस दी गई है तो 10 ऑब्जेक्ट की प्राइस अगर निकालनी है, जैसे 4 बुक की प्राइस दी गई है, 10 बुक की प्राइस निकालनी है, तो हम 10 बुक की प्राइस तभी निकाल सकते हैं जब हमें 1 बुक का मालूम हो। तो 1 बुक का निकालने के लिए या फिर 1 ऑब्जेक्ट का निकालने के लिए क्या तरीका होता है उसमें ये भी बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ। इस चैप्टर में आगे है फिशरमैन जब जाते हैं, वो अपनी नाव लेके अपने बोट लेके वो समुद्र में चले गए फिशरमैन। अब उनको मछलियां पकड़नी है, मछलियों को कैसे पकड़ते हैं, वो कैसे प्लान करते हैं, अपने प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स, व्हाट द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग ड्यूरिंग कैचिंग फिश, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू रीड in the next topic, and the topic is what a catch. Now we are going to read what a catch. Good. Out on the sea, fishermen look for a place where they hope to find a good catch of fish. सबसे पहला प्लान, वो प्लान करते हैं कि कैसे हमें फिश को पकड़ना है। तो आउट ऑन द सी, जब वो समुद्र में जा रहे होते हैं, फिशरमैन लुक फॉर अ प्लेस, वो एक ऐसी जगह को ढूंढ देखते हैं कि जहां उन्हें होप होता है, उम्मीद होती है क्या,
टू फाइंड अ गुड कैच ऑफ फिश, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ सके। अब वो अपने एक्सपीरियंस उन्हें मालूम होता कि हम कहाँ मछली पकड़ेंगे तो हमें ज्यादा मछलियां मिलेंगी। अब वहां मछलियां, अब जहाँ कोई मछली है ही नहीं वहीं जाल डाले जा रहे हैं, अपने नेट डाले जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, एक भी मछली नहीं आ रही, झूठ मूठ का मेहनत बेकार हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, अपने एक्सपीरियंस से पता करते हैं और ये इस उम्मीद से और ऐसी जगह अपने नाव को रोकते हैं, अपने अपने बोट को रोकते हैं और ऐसी जगह नेट डालते हैं जहां उन्हें होप होता है, होप टू फाइंड अ गुड कैच ऑफ फिश, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ सकें। देयर दे स्प्रेड देयर नेट्स, जहां उन्हें उम्मीद होती है कि ज्यादा मछलियां होंगी वहां अपने नेट अपने जाल को क्या करते हैं, फैलाते हैं, दे स्प्रेड करते हैं। They will have to wait for many hours for the fish to come into their nets. वहां वे अपने जाल को स्प्रेड कर देते हैं, they spread their nets and wait on the boat, और अपने बोट पे वेट करते रहते हैं for a long time, for many hours, वहां पे वेट करते रहते हैं ताकि मछलियां आके नेट में फंस जाएं। जब मछलियां नेट में फंस जाती हैं तो उन मछलियों को क्या कर लेते हैं, ऊपर उठा लेते हैं, ठीक, दे टुक आउट देयर नेट्स, और उन मछलियों को बाहर उस जाल से निकाल लेते हैं। ये सारा का सारा काम करना पड़ता है। देखिए ये क्या हो रहा है, ये देखिए ये लॉग बोट है, इनके पास नेट भी है, बहुत सारे नेट होते हैं। वो नेट को क्या करते हैं, समुद्र में फैला देते हैं। ये तो खैर किनारे का सीन है, लेकिन समुद्र के अंदर वो अपने नेट को फैला देते हैं, उसमें मछलियां फंस जाती हैं, काफी देर तक वो वेट करते हैं और वेट करने के बाद वो अपनी जाल को ऊपर खींचते हैं, जिसमें से मछलियां बाहर निकाल लेते हैं। फिर क्या होता है, इतना करने के बाद वो फिर से वापस आएंगे, वापस आने के बाद उन मछलियों को बेचेंगे। लेकिन अब क्या है, मैं बोला था पहले वीडियो में कि हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ बोट, जिसमें हमने पहले वीडियो में लॉग बोट के बारे में पढ़ा। अब हम डिफरेंट तीन टाइप के और बोट पढ़ने वाले हैं, जिसमें से पहला बोट है लॉन्ग टेल बोट।
body, shake it, baby.